শিলিগুড়ি থেকে বুলেট ট্রেনে চাপিয়ে আমরা একদম প্রবল গতিতে ওনাকে নিয়ে বেনারসে পৌঁছে দেব সুন্দরভাবে। একদম এই শিবরাত্রিতেই মনে করবেন ওনার কাল্পনিক যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। You will be shocked. हम लोग सुवेंदु अधिकारी जी के लिए मैटर्स कर रहे थे। जिस प्रकार की एलिगेशंस उन पे लगी है, यहां पर फर्स्ट ईयर लॉ का बच्चा भी खड़े होकर हंस पड़ेगा कि ये किस प्रकार की एलिगेशंस लगाई हैं। एक जगह तो उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था कि किसी कार्यकर्ता की उन्होंने गोल्ड चेन चुरा ली। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर रही हूं। शुवेंदु अधिकारी पे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सोने की चेन चुराने का प्रयास करा। अरे तृणमूल निपात থেকেও ভয়াবহ। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। বন্দে মাতরম দিয়ে আপনারা প্রোগ্রাম শুরু করেছেন। আজকে জেলা এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীরা এত বড় সংখ্যায় এখানে উপস্থিত হচ্ছেন। আপনাদের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে যে বিসর্জন আসন্ন। 2026-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। আজকে এই বৃহত্তর জাতীয় সমাজকে ভেঙে টুকরো করে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলেছে, সীমিত শক্তি নিয়ে বিজেপি তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আর সেই লড়াই এখনো চলছে। সেই লড়াই সম্পূর্ণতা পাবে এই বাঁশুড়ি স্বরাজের নেতৃত্বে। আজকে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাই আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি আবার তাকে আমাদের এই কলকাতায়, কেউ বলছেন সিটি অফ জয়, এখন সিটি অফ জয় কি সিটি অফ ভয়, এটা নিয়ে মানুষের মনের মধ্যে একটা বিতর্ক চলছে। তো সেখানে স্বাগত জানাচ্ছে। বাঙালি তো অতিথি পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল একদিন গোটা দেশে। বেঙ্গল কমনলি নোন ফর ইজ হসপিটালিটি। কিন্তু কি হচ্ছে বর্তমান পরিবেশে সে প্রত্যেকের জানা। উত্তর ভারতের মানুষের দিকে তাকিয়ে বলা হচ্ছে তোমাদের খৈনির থুতুতে আমরা কলকাতার লোহায় জং ধরতে দেব না। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়, এই ভাষা নজরুলের ভাষা নয়, এই ভাষা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর ভাষা নয়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাষা নয়। আজকে যে ভাষায় কথা বলা হচ্ছে, বাংলা এবং বাঙালিকে যারা ধ্বংস করেছেন, যারা দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, শিশির ভাদুরীর সঙ্গে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, যারা বাঙালি বিপ্লবীদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছেন, যারা রানী শিরোমণির সেই চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইকান মিউটিনির কথা এই প্রজন্মের মানুষকে জানতে দেননি, যারা রানী রাসমণির কৃতিকে কোনোভাবেই বর্তমান প্রজন্মের সামনে গৌরবান্বিত করে উপস্থাপিত করেননি, যারা দিনের পর দিন ইতিহাসকে শুধুমাত্র বিকৃত করে দিয়েছে, আজকে সেই ইতিহাসের পুনর্লিখনের প্রয়োজন আছে, তাদের উপযুক্ত সম্মানের প্রয়োজন আছে। যদি রানী রাসমণি না থাকতেন, মথুর বাবু না থাকতেন, আমি পরম শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অনেক মানুষ চিনতে পারতেন না। রামকৃষ্ণের আজকের এই প্রতিষ্ঠা, তাকে তিনি খুঁজে পেতে পারতেন না। আজকে যদি সেদিন ওই মহিলা, যিনি অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল সমাজের কিছু অংশের মানুষ, তিনি না এগিয়ে আসতেন, তাহলে রামকৃষ্ণদেব হতেন না। কারণ বিবেকানন্দ যেদিন আসেন, আমরা বিবেকানন্দকে কলকাতার তথাকথিত ভদ্রলোক মানুষ, যে যুবকরা তাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন, সেখানে সেই সভার কে সভাপতিত্ব করতে অনেকে রাজি হননি। উত্তরপাড়ার রাজা রাজি হয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ আমি সভাপতিত্ব করব, উনি অনেক বড় কাজ করেছেন, কিন্তু আমি ওনাকে স্বামীজি বলে সম্বোধন করতে পারবো না, আমি ওনাকে ব্রাদার বিবেকানন্দ বলে অ্যাড্রেস করব। আর যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ মারা যান, তার পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল, দ্য মিট ইটিং সন্ন্যাসী অফ বেলুর মঠ ডায়েড। আমরা সেই বাঙালি আমাদের অতীতকে নিয়ে আজকে আমাদের বর্তমানের চর্চা করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সময় আসন্ন। দেখুন, তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল সরকারের নেই। যেটা আছে সেটা লিভিং ফসিল, জীবন্ত জীবাশ্ম। তৃণমূল থাকবে না, তৃণমূল চলে যাবে, কিন্তু আপনাদের থাকতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গকে রাখতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ, এন.সি. চ্যাটার্জি, রানী জ্যোতির্ময়ী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকারের, মেঘনাথ সাহেদের জন্য যে ভূমি আমরা পেয়েছি, সেই মাটিকে রক্ষা করতে হবে। বন্ধ করতে হবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, বন্ধ করতে হবে ক্রমবর্ধমান র্যাডিক্যালাইজেশন, বন্ধ করতে হবে এই ধর্মান্ধ উন্মাদনার কাছে মাথা নত করার খেলা। তাই আপনারা সবাই সংঘবদ্ধভাবে এখানে এসেছেন। আমার দলীয় আরেকটি কার্যক্রমে আমি একে বক্তব্য রাখতে যেতে হবে। আমি প্রথমেই আমার বোন সুষমা স্বরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে যে ওকে আপনাদের কাছে রেখে আমি আরেকটি সভায় যাচ্ছি। বুঝতে পারছেন নির্বাচন এসে গেছে, বিভিন্ন জায়গায় মুহূর্তে মুহূর্তে দৌড়াচ্ছেন। আপনারা এত ভালো সংখ্যায় আজকে এখানে এসেছেন এবং যে সংখ্যা আজকে হয়েছে, মে মাসের মধ্যে এই সংখ্যাটাকে 5 গুণ করতে হবে। শুধু একটা দুটো ভোটে হারালে চলবে না। তৃণমূলকে এমন বিষয়, আপনারা জানেন কলকাতায় একটা স্লোগান দিয়েছিল তৃণমূল, when that particular your bullet train comes, then there was a popular slogan. আমরা চাই না বুলেট কার, মমতা দি আরেকবার। We don't want bullet car, we don't want bullet train, we want Mamata Banerjee once again. This was the slogan. কিন্তু এবার কি হয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে বুলেট ট্রেন ছাড়ছে। শিলিগুড়ি থেকে বুলেট ট্রেনে চাপিয়ে আমরা একদম প্রবল গতিতে ওনাকে নিয়ে বেনারসে পৌঁছে দেব সুন্দরভাবে। একদম এই শিবরাত্রিতেই মনে করবেন ওনার কাল্পনিক যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। জীবনের বাকি শেষগুলো দিন ওরা ওখানেই ধ্যান অর্চনা করে কাজ করবেন। মানুষ শান্তি চায়, মানুষ মুক্তি চায়, মানুষ গভীর অসুখ থেকে মুক্তি পেতে চায়। এখন তো কোভিডের পরে নিপা এসে গেছে, আর এই তৃণমূল নিপার থেকেও ভয়াবহ। এই অসুখ থেকে বাঁচতে হবে, এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে হবে। ধন্যবাদ। I believe that the Kolkata High Court in some capacity is a parent high court for me as well, because I used to be Shri Shekhar Basu's junior. In fact, Rajdeep Majumdar ji used to be my senior in chamber. And whatever जो भी लीगल दावपेच सीखा है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की लाल कलर की रेड ब्रिक कॉरिडोर्स में ही सीखा है, अपने सीनियर्स से सीखा है। इसलिए कमिंग बैक हियर इज लाइक कमिंग बैक होम। इट इज सच एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आज जो मैं आपसे बात करने आई हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूं, क्योंकि आप समाज का असाधारण वर्ग हैं। आप लीगल फ्रेटर्निटी है, यू आर द लॉयर्स। यानी ना केवल आप इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से परिपूर्ण हैं, आप बहुत समाज का बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है, बल्कि आप ओपिनियन मेकर्स भी हैं। और यही नहीं, जैसा आपने ऑडियो विजुअल में पहले देखा, जब भी भारत पर संकट आया है तो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में लॉयर्स ने ही बीड़ा उठाया है कि मां भारती की आकर हम रक्षा करें। ये जो काला कोट, ये जो गाउन हम पहनते हैं, इट्स नॉट merely a uniform, it's an armor. It's an armor that we warriors who are members of the legal fraternity go to court every single day to defend the constitution of Bharat and the democracy of Bharat. आजकल फैशन बन गया है, खास करके पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष और इंडिया अलायंस के कई लोग लाल कलर का वो पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन झलकाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी उसको खोलकर उसको पढ़ने की जहमत नहीं करी होगी। बट वी आर द पीपल, वी आर द मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, जो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल में क्या लिखा है, उसका महत्व क्या है। और इसीलिए आज I have come to speak to the defenders of democracy in West Bengal. West Bengal परिवर्तन का वादा करा था, मां, माटी और मानुस का नारा भी दिया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से यहां पर टीएमसी की सरकार आई है, माहौल कुछ ऐसा बना दिया है कि मां शर्मिंदा है, माटी रुल रही है और मानुस बेहाल है। और इसीलिए
यहां पर जितने भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के अधिवक्तागण हैं, अब ये जिम्मेदारी आप पर है कि हम असली का परिवर्तन, या जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। ये मैं क्यों कह रही? देखिए, मैं जानती हूं कि मैं अधिवक्तागण के सामने हूं, इसलिए बिना फैक्ट्स, फिगर्स और एविडेंस के नहीं बात करूंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं एक तो जो बॉम्ब कल्चर जिसने टेक ओवर कर लिया है बंगाल को। जब भी कहीं पर भी पूरे देश में अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है या बॉम्ब का प्रयोग होता है, तुरंत और तुरंत कार्रवाई टेररिस्ट लॉज में करी जाती है, एंटी टेरर लॉज लगाए जाते हैं। लेकिन बंगाल में बॉम्ब ब्लास्ट होना या बॉम्ब का प्रयोग होना इतना ज्यादा एक सामान्य बात हो गई है कि अगर कभी भी यहां पे किसी प्रकार का बॉम्ब का प्रयोग होता है तो कोई कहता है हां कोई पॉलिटिकल रैली चल रही होगी। मैं हैरान हूं, मैं आपको ये अपने अनुभव से बता रही हूं। मेरे चेंबर में हमने ऐसे अनगिनत केसेस करे हैं जहां पर बॉम्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन टीएमसी की सरकार ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर अंकुश लगा दिया और उनको एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रोविजंस को इन्वोक ही नहीं करने दिया। इसका अर्थ क्या है? When you don't invoke the provisions of the Explosive Act, you are ensuring that the investigation has to be handed over to the NIA. यानी एक एजेंसी को सर्कमवेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ऐसा दबाव डालती है यहां की स्टेट गवर्नमेंट, तृणमूल की सरकार, कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले केसेस में भी एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रोविजंस को लगाने नहीं देती। अगर हम बात करें, मैंने क्यों कहा कि मां शर्मिंदा है, हम कैसे भूल सकते हैं संदेश खाली। संदेश खाली में आपको याद होगा जब माताओं और बहनों को बेआबरू करा जा रहा था तो ये फैक्ट था कि वो बेआबरू, वो गूंस, वो परपेट्रेटर्स, दे वर द कार्यकर्ताज एंड द लीडर्स ऑफ टीएमसी। यहां तक कि कई वारदातें तो टीएमसी के ऑफिस में हुई। लेकिन आपको याद होगा कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन। उनको एक्चुअली में जाके बोलना पड़ा कि शाहजहां शेख को आपने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा। आपको याद है कि जब सेंट्रल एजेंसीज गई थी तफ्तीश के लिए तो टीएमसी के नेताओं ने वहां पर एक मॉब को क्रिएट कर कर उन पर पथराव करा था। कभी आपने ये सुना है कि स्वतंत्र भारत पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ही स्टोन पेल्टिंग या पथराव करा जाए? And courts, thank God for the Honorable High Court and thank God for the Supreme Court of India that they intervened and got Shahjahan Sheikh arrested. लेकिन वो विजुअल्स हम भूल कैसे सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा था कि शाहजहां शेख कस्टडी में लेके गए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उनको पुलिस एस्कॉर्ट कर कर लेके जा रही है। महिलाओं के साथ तो जिस प्रकार का यहां पर सत्ता को साधने के लिए, सत्ता को जकड़ने के लिए जिस प्रकार का अपराध हो रहा है वो अक्षम्य पाप है। पोस्ट पोल वायलेंस की एफआईआर्स पढ़ने के बाद 3-3 दिन तक रात को नींद नहीं आती। एक ही परिवार की न 15 बरस की बच्ची सुरक्षित थी, न 50 बरस की महिला। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने टीएमसी को वोट ना देके किसी और को वोट दी थी। Dissent, ladies and gentlemen, as we lawyers know, is the backbone of democracy. But dissent cannot be punished with the kind of cruelty that the Mamata Trinamool government is actually perpetrating in Bengal presently. अगर हम बात करें तो आरजी कर में आपको याद होगा जब वो एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ था, courts had to intervene because there was no action being taken. जब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई तो सीबीआई की रिपोर्ट में यह बोला गया कि यहां की लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कॉलेज की मैनेजमेंट के साथ कवर अप करने की प्रयास करी थी। और जिस प्रकार का संवेदनहीन बयान स्वयं ममता बनर्जी ने, जो कि एक महिला मुख्यमंत्री है,
लेकिन उनके ही राज में महिलाएं रुल रही हैं, असुरक्षित हैं, उनकी उन्होंने अनदेखी कर रही है। मैंने कहा ना, मां शर्मिंदा है और माटी रुल रही है। माटी इसलिए रुल रही है और मानुस बेहाल है कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल डिसेंट पे यहां पर तुरंत एक एफआईआर लगा दी जाती है। यू विल बी शॉक्ड। हम लोग सुवेंदु अधिकारी जी के लिए मैटर्स कर रहे थे। जिस प्रकार की एलिगेशंस उन पे लगी है, यहां पर फर्स्ट ईयर लॉ का बच्चा भी खड़े होकर हंस पड़ेगा कि ये किस प्रकार की एलिगेशंस लगाई हैं। एक जगह तो उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था कि किसी कार्यकर्ता की उन्होंने गोल्ड चेन चुरा ली। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर रही हूं। शुवेंदु अधिकारी पे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सोने की चेन चुराने का प्रयास करा। एक जगह उन पर 2000 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाया गया और एक एफआईआर में तो सीआरपीएफ के साथ उनको यह बोला गया कि आपने सीआरपीएफ के साथ कलूड करके, कंस्पिरेसी करके टारपोलिन चुराने का आरोप उन पर लगाया गया है। मखौल बना दिया है पूरे के पूरे लीगल प्रोसेस का। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन have now turned into nothing but persecution under the Mamata government. And this is where I need my legal warriors to stand tall. आपको याद होगा कि 2017 में एक बहुत ही अजीब सा वाकया यहां पर हुआ होगा। दुर्गा पूजा के दिन थे और ममता सरकार ने विसर्जन पर, यानी मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसी दिन मुहर्रम भी आ रहा था और क्योंकि ताजिए निकलने थे तो ममता सरकार ने ये बोला कोर्ट में, जब हाई कोर्ट ने इस बात का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर कम्युनल वायलेंस हो सकती है, इसलिए दुर्गा पूजा के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंगाल ये मां दुर्गा की भूमि है, बंगाल ये मां काली की भूमि है। जब भी आप बात करते हैं दुर्गा पूजा की तो पूरे भारत में सबसे पहले आपको बंगाल याद आता है। अरे मां दुर्गा की भूमि पर आपने दुर्गा पूजा के दिन मां दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो मैं धन्यवाद करती हूं कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिन्होंने इस देश में सेक्युलरिज्म और इस देश की डेमोक्रेसी दोनों को अपहोल्ड करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को यह डायरेक्शन दी कि नहीं, मुहर्रम के ताजिए भी निकलेंगे और दुर्गा पूजा का विसर्जन भी होगा। मैं पूछना चाहती हूं यहां आपके माध्यम से कि सेक्युलरिज्म की किस प्रकार की ट्विस्टेड और संकीर्ण परिभाषा ममता सरकार चलाती है। आपने हाल ही में बजट देखा होगा, जो अभी फरवरी के महीने में इंटरिम बजट निकाला है बंगाल सरकार ने। 5,600 प्लस करोड़ रुपीस हैव बीन ग्रांटेड टू माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसास। देखिए, मैं किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं ममता सरकार से कि हाल ही में जो डियरनेस अलाउंस का ऑर्डर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसका प्रावधान आप करना कैसे भूल गए। आपको याद होगा 2008 से लगभग 15 से 20 लाख सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट वर सफरिंग, क्योंकि ममता जी की सरकार ने उनका डियरनेस अलाउंस रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, पहले हाई कोर्ट से वो एम्प्लॉयज जीते और फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जीते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला डियरनेस अलाउंस इज अ लीगल राइट ऑफ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और जो ऑर्डर आया है फरवरी के ही महीने में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 25% यानी 25% डियरनेस अलाउंस आपको अरियर्स के साथ इन एम्प्लॉयज को तुरंत देना है। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो फॉर्मर रिटायर्ड हाई सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जो बाकी के पूरा का पूरा प्रोसीजर भी देखेगी कि कैसे ये डियरनेस अलाउंस देना है।
पर मैं पूछना चाहती हूं यहां से खड़े होकर कि 11,000 करोड़ की लायबिलिटी आपके सिर पे गिरती है, आप अपने ही सरकार के सरकारी मुलाजमों को 15 साल तक कचहरी के चक्कर कटवाते हैं। आपकी ना नीयत है उनका समाधान करने की, ना आपकी नीयत है उनको डियरनेस अलाउंस की, लेकिन 5,600 करोड़ रुपए आप केवल और केवल मदरसों की एजुकेशन के लिए दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बंगाल के विकास को अपनी तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के बलि चढ़ा दिया है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं आपके सामने, यू विल बी शॉक्ड। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक वक्त था जब इंडस्ट्रियल आउटपुट में पूरे भारत में बंगाल का शेयर 27% यानी 27% हुआ करता था। टीएमसी के आने के बाद ये इंडस्ट्रियल आउटपुट 27% से गिरकर मात्र 3.5% हो गया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक वक्त था कि बंगाल 10.5% कंट्रीब्यूट करता था नेशनल जीडीपी में, लेकिन अब ममता जी के नेतृत्व में आई हुई टीएमसी की सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि बंगाल की हिस्सेदारी जीडीपी में आधी हो गई है और अब बंगाल मात्र 5.6% कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी में। यही नहीं, आप ये भी देखिएगा कि पर कैपिटा इनकम जो कभी 27.5% होती थी नेशनल एवरेज से ज्यादा, वो अब टीएमसी के राज में गिरकर मात्र 16.3% हो गई है। हाल ही में आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। एसआईआर का मुकदमा चल रहा था और सीजेआई ने उनकी जिरह सुनने के बाद सीधा ये बोला है, एसआईआर एक ऐसा इंडिपेंडेंट और आवश्यक प्रोसीजर है, एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि बंगाल के जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनका जेन्युइन राइट प्रोटेक्टेड रहे। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, वी वोंट अलाउ एनी इम्पेडिमेंट इन कंप्लीशन ऑफ एसआईआर। यहां तक कि बंगाल की पुलिस को शोकॉज नोटिस दिया गया है, क्योंकि यहां पर द टीएमसी गवर्नमेंट वाज मिसयूजिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड द पुलिस यूजिंग वायलेंस टू थ्वार्ट द एंटायर एसआईआर प्रोसीजर। बंगाल की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी और किसी भी प्रकार की वायलेंस के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। मित्रों, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, और मैं धन्यवाद करती हूं कि बार बार चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसको आना पड़ता है, कवच की भूमिका निभानी पड़ती है, वरना वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति की बलि बंगाल का देवतुल्य मतदाता पता नहीं कब की बलि चढ़ चुका है। लेकिन आज मैंने कहा ना, मैं अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के वॉरियर्स से बात करने आ रही हूं, क्योंकि ये जो असली परिवर्तन है, ये जो डेमोक्रेसी को बचाने की मुहिम है, ये केवल और केवल वकीलों के माध्यम से हो सकती है। आगामी चुनाव में हमारे विधि प्रकोष्ठ यानी लीगल सेल की बहुत अहम भूमिका है, और इसीलिए मैं आज केवल आपसे बात करने नहीं आई हूं, मैं आपका आवाहन करने आई हूं। आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आई हूं। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी, उनको कैसे भरा जाए इसकी तैयारी करिएगा। जितने भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट्स हैं
उनको आपकी जरूरत है, आपकी सतर्कता की जरूरत है, आपके चौकन्नेपन की जरूरत है, आपकी लीगल प्रोएस की जरूरत है। यही नहीं, आपसे मैं ये भी विनती करने आ रही हूं कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन पर आप तैयार रहिएगा, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है टीएमसी की सरकार के झूठे मुकदमे डालने का। कैंडिडेट्स पे और उनकी टीम्स पर झूठे मुकदमे और फॉल्स एफआईआर टीएमसी की गवर्नमेंट निश्चित ही करने का प्रयास करेगी। वहां पर ढाल बनकर एक शील्ड का काम आपको करना है। और इसीलिए आज मैं आपसे ये विनती करती हूं, ये करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि ये जो आने वाला असेंबली का चुनाव है, ये केवल इलेक्शन कैंपेन्स तक, टिकट वितरण, कैंडिडेट्स तक और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। आपको तत्पर रहना होगा कि जब भी जरूरत पड़े आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, बिकॉज विदाउट यू बंगाल में डेमोक्रेसी बचना नामुमकिन होगा। आप सभी ने समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए, असली परिवर्तन के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगी पलटानो दरकार, आप कहेंगे चाहे बीजेपी सरकार। ठीक है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।